Hi guys, I hope you all are keeping well and being safe. So, a few days back, I had a very nice, productive, and enriching session with two boys, Krunal and Janish, for their YouTube channel RiffScript. I had uploaded the part one of that very podcast on my channel before. I'll attach the link of that in the comment section below. But today I'm presenting you the second part of the video where we discussed about politics and economics, how Zimbabwe's hyperinflation impacted it, and demonetization, was it a correct move, and a lot of interesting stuff. Trust me, when I was watching my own podcast, I was like, this was one productive session, and we went on talking because we didn't realize that we are talking such great stuff. So I'm sure you will have good time watching it. So do watch out the second part and let me know how you found it. So keep liking my videos and do subscribe to my channel. Thank you. Like economics की importance अब लोगों को पता चल रही है. I feel like that, and now they know that there is a wider scope of economics in future, and this subject is very much upcoming. That is why. So that is what I feel about economics. When you look at someone explaining, आपको खुद अच्छा लगता है, कोई आपको समझा रहा है, फिर आपको कुछ दिख रहा है. सिर्फ बोलने से you can't learn. You have to have something written. तो मुझे लगा कि वो PPT and all बड़ा boring होता है. Anyway, colleges में अब वो use करते हैं, तो बच्चे all they are already having a look at the PPT. तो मुझे लगा why not have a traditional whiteboard. स्कैरसिटी की बात कर रहे थे ना हम, और लिमिटेड रिसोर्सेज सारी कंट्रीज के पास. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज, स्पेशली जिम्बाब्वे, केन्या, वो सारी कंट्रीज के पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत सारी चीजें उनके पास, लेकिन फिर भी देयर इकोनॉमी इज रिप्ड अपार्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स. तो क्योंकि वो हमेशा रहता है ना कि इकोनॉमीज जो होते हैं, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले लास्ट ईयर ऐसा प्रिडिक्शन था कि नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इतने परसेंटेज होगा, फिर जैसे सेकेंड वेव आई तो वो परसेंटेज में चेंजेस हुए. और इकोनॉमिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिवली सोच के, जितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिवली सोच के, थियरीज के हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं ना कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है. लेकिन जहां पर बीच में पॉलिटिक्स आ जाएगा तो फिर वो तो सारी कंट्रीज डील कैसे करेगी? क्योंकि जैसे जिम्बाब्वे के साथ हो रहा है ना कि उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन फिर भी देयर इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल. हाँ, तो वो वहां पर इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे सेव कर सकता है किसी को? You mean you are talking specifically about Zimbabwe? Yeah, you want me to talk about like politics and economics? किस part पे you want me to speak on? Zimbabwe is an example, right? Zimbabwe is an example. हाँ. लेकिन overall. So basically, I want to say क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है. What you want me to answer? कि eco and politics कैसे related? Eco and politics with the example of Zimbabwe. अच्छा, okay. तो okay. So eco and politics बहुत ये लोग उसको इंटरलिंक करते हैं. So economics basically is how do you run an economy, and and politics को अगर हम उस वे में ले तो politicians have the power to run the economy. Okay, तो people sometimes mix it. क्यों mix करते हैं? Because it is inevitable. अगर GDP गिरेगी तो हम politicians को ही तो पकड़ते हैं कि इनकी वजह से गिर रही है. Like अगर आप देखो एक जो unbiased economist होगा जो बहुत ही कम रेयर हमें मिल सकेगा, बिकॉज थोड़ा बहुत एज ए ह्यूमन पर्सन यू माइट बी बायस्ड टुवर्ड्स टेकिंग डिसीजंस. तो एक अनबायस्ड अगर न्यूट्रल इकोनॉमिक्स से पूछोगे तो दे शुड नेवर इंक्लूड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स टुगेदर. दैट्स व्हाट आई नो एंड आई हैव रेड अबाउट इट, बट दैट इज समथिंग रेयर. एंड स्पीकिंग अबाउट politics and economics, how you told, yes, definitely they are interlinked. अभी मैं जिम्बाब्वे वाले पार्ट पे रुक के आऊंगी. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. जैसे बैक इन 90s and 19 स्टार्टिंग ऑफ 1890s, उस टाइम पे जब हम अगर इकोनॉमिक्स बुक्स उठाएंगे तो ये डिबेट अभी का नहीं है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स वाला, ये बहुत पुराना है. सो देयर वर दीस इकोनॉमिक्स जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इनको बोलते थे. वो जो लोग थे ना, दे वर एडवोकेटर्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस शुड बी वेरी लेस. दे ऑलवेज थिंक कि टैक्स कट करना, गवर्नमेंट को इकोनॉमी से बाहर रहना इकोनॉमी के लिए बेटर होगा. दे वर सच पीपल, दे वर अगेंस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन. Whereas जब Keynesian economics, maybe you heard the name Keynes काफी फेमस नाम है इकोनॉमिक्स में. तो Keynesian जो इकोनॉमिक्स थे, they always thought कि इकोनॉमी अगर डूब रही है, इकोनॉमी गिर रही है, तो एक गवर्नमेंट ही उसको बचा सकती है.
सो उस ये डिबेट मतलब आज का नहीं है कि गवर्नमेंट को और मतलब आना चाहिए कि नहीं इकोनॉमी को संभालने के लिए, तो ये तब से डिबेट चल रहा है बिटवीन दोज सप्लाई साइड एंड केनीशियन इकोनॉमिक्स, सो बिटवीन पॉलिटिक्स एंड बिटवीन इकोनॉमिक्स आई वुड से। अपनी कंट्री में देखिए, अगर आपको पता हो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, शायद यू माइट नॉट नो, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी आरबीआई it sets the monetary policy, और आरबीआई में एमपीसी एक कमिटी बैठती है, वो सेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो उसके जो लोग होते हैं बेसिकली दे आर 3 of them are economists and actually 6 people are there, 3 are suggested by them only, but basically अगर आप वो पार्ट देखो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग के इकोनॉमिस्ट रन करते हैं, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट है। और कमिंग टू द फिस्कल पॉलिसी, जो टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर रिलेटेड पॉलिसी है, वो हमारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो अगर आप देखो दोनों पॉलिसीज मॉनेटरी और फिस्कल, एक इकोनॉमिस्ट चला रहे, पॉलिटिशियंस चला रहे, तो सिर्फ पॉलिटिशियंस कंट्री नहीं चला रहे, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस कंट्री चला रहे। व्हाट आई फील एंड मतलब एक अमेलगमेशन है दोनों का किसी भी कंट्री में। अब कमिंग टू जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे में भी ऑल नो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है। इफ यू रेड जिम्बाब्वे का तो नाम, मतलब 2019 से उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने जो गलत डिसीजंस लिए, बिकॉज व्हाट दे थॉट ना, मे बी एज अ कॉमन पर्सन एनीवन वुड थिंक कि जब एक गवर्नमेंट को पैसे की कमी होती है, गवर्नमेंट इज इन डेफिसिट, डेब्ट में है, तो गवर्नमेंट क्या करे? अरे गवर्नमेंट तो हैज ऑल द पावर, गवर्नमेंट जाके पैसा प्रिंट कर ले। जब आप पैसा प्रिंट कर लोगे तो डेट सारी क्लियर हो जाएगी। बट ये आप नहीं सोचते कि पैसा प्रिंट करना, एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, दूसरी प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो दैट्स वेयर जिम्बाब्वे वेंट रॉन्ग। उन्होंने बहुत एक्सेसिव मनी सप्लाई बढ़ा दी। मनी सप्लाई कैसे बढ़ाई? मतलब सिंपल वर्ड में बोलूं, उन्होंने पैसा ज्यादा प्रिंट कर दिया। पैसा इतना प्रिंट हो गया कि हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छी है, इट्स नॉट बैड, 4 to 5% तक अच्छी है। बट जब वो मतलब जैसे कहते हैं ना आसमान तोड़ के चली जाएगी, दैट इज ऑब्वियसली बैड फॉर द कंट्री। 50% above is really bad and you will be shocked to know both of you कि जिम्बाब्वे 500 above क्रॉस कर चुकी है। मतलब इन्फ्लेशन सोचो उनका, दैट वाज 2020 में, और फिर रिसेंट में तो उनकी 600, मैंने पढ़ा था कि 670-80 क्रॉस कर गई थी। कैन यू इमेजिन उनकी गवर्नमेंट की वीक डिसीजन मेकिंग से और उनकी जो गलतियों से उन्होंने जो पैसा ज्यादा प्रिंट कर दिया, इन्फ्लेशन, आप सोचो कितना महंगाई बढ़ गई वहां पर। So that was where they went wrong. They could have switched to other means. They could have borrowed from the public. They could have borrowed from other nations rather than just uselessly, मतलब uselessly क्या unnecessarily they printed notes. तो ये उन्होंने गलती की थी। तो उसका रिवर्स कैसे कर सकते? हाँ, how can टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। अभी तो उन्होंने इतना पैसा बढ़ा दिया इकोनॉमी में कि पैसे को हाउ दे कॉल इट इन इकोनॉमिक्स टर्म, उसको लिक्विडिटी वापस अब्सॉर्ब करने के लिए उनको बहुत सारे वेज फॉलो करने पड़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में ही होते हैं ऐसी चीजें। आप क्या करें, उनको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सब कुछ बढ़ा देना चाहिए। अगर वो बढ़ाएंगे तो लोगों के हाथों से an economic student might definitely relate more to me, थोड़ा जो मैं बोल रही हूँ। अगर आप लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना चाहते हो इकोनॉमी, आप चाहते हो इकोनॉमी में पैसा हो, तो ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस होती है आप उनको ईज आउट करते हो, रेपो रेट वगैरह को कम कर देते हो, बैंक रेट को कम कर देते हो, सीआरआर को कम करते हो। बट अगर आप चाहते हो इकोनॉमी में से बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, हमें पैसा को अब्सॉर्ब करना है, इन दैट केस वी हैव टू स्टिक टू अ स्ट्रिक्टर मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्ट्रिक्टर फिस्कल पॉलिसी, पैसा को कंट्रोल करने के लिए। सो नाउ दे शुड Zimbabwe should stick to all these things. अब जो उन्होंने गलतियां कर दी वो तो कर दी, but now they should do all of this अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। Okay. Yes. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जो बताया ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में। तो जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात की ना, तो उसमें ऐसा होता है ना कि साइक्लिक प्रोसेस होता है कि अगर रेपो रेट कम करते हैं तो कोई जो फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं वो कम पैसा इंजेक्ट करते हैं, ऐसा ही होता है ना। और रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा सबको दे सकते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। रेपो रेट वो रेट होता है रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक, और उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट पे। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी को, हम लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमी में पैसा है, हमें कंट्रोल करना है, तो हमें ये रेट बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब सिंपल वे में बोलो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ मैं। जो लोग ये देख भी रहे थे माइट जस्ट फ्लिप कि ये क्या बोल रही है, मतलब सिंपल वे में रखो तो स्ट्रिक्टर मॉनेटरी पॉलिसी आप फॉलो करोगे अगर आप पैसे को अब्सॉर्ब करना चाहते हो। whereas if you want to inject liquidity in the इकोनॉमी बहुत डल फेज में है, हम लोग एक डिप्रेशन फेज में है, कह लो रिसेशनरी फेज चल रहा है, तो हम चाहते लोग
लोग there's business pessimism how they say को लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, so in that case the government should RBI should rather they should lower all these rates, तो लोगों को थोड़ा इंसेंटिव मिले कि अच्छा रेट्स कम है तो इजीली उनको क्रेडिट मिलेगा, बैंक से लोन्स मिलेंगे, so that is how it goes about, like ये ऐसे करना चाहिए ताकि वो साइकिल चलती रहे लोग ऐसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी ना हो जाए। करेक्ट। तो अगर इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी में अगर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वहां पर अगर गवर्नमेंट लैग कर रही है तो उसकी वजह से आरबीआई को या कोई भी सेंट्रल बैंक होगी किसी भी कंट्री की, उनको भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ेंगे ना, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी इज नॉट डूइंग वेल, राइट? तो वहां पर उसकी वजह से भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सब चेंज करना पड़ेगा ना। देखो दे आर बोथ आई वुड से ब्लेड्स ऑफ वन सिज, और दोनों ही चलते रहना चाहिए। और अभी मैं बहुत सारा इकोनॉमिक डेप्थ में नहीं जाऊंगी, पर बहुत एक चीज होती है लिक्विडिटी ट्रैप करके, मैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर एक सिचुएशन होता है तो उस पॉइंट पे हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी ऐसे पॉइंट पहुंच जाती है जहां मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होती है, तो तब फिस्कल ही काम आती है। सो बोथ ऑफ देम हैव टू फंक्शन, मतलब ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि मॉनेटरी अच्छी है फिस्कल अच्छी है, दोनों जरूरी है फॉर एन इकोनॉमी। एंड देयर इज अ सिचुएशन, एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट आता है जिसपे फिस्कल पॉलिसी का कुछ काम नहीं होता है। फिस्कल पॉलिसी को आप कुछ भी ऊपर नीचे कर लो, इट विल बी इनइफेक्टिव। एट दैट पॉइंट द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेप्स इन। तो दोनों का साथ में फंक्शनिंग करनी पड़ेगी फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोग्रेस। हाँ जी, दोनों पॉलिसीज इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो मैंने एक्चुअली वो पढ़ा था वो केनेजियन और फ्री मार्केट इकोनॉमी, दो टाइप की थियरीज है ना। तो इंटरव्यू से पहले पढ़ा गया था ना। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि मतलब हेडलाइन ही यही थी वो आर्टिकल की कि इकोनॉमिस्ट नेवर अग्री with each other because of these two main theories, right? तो अगर कोई इकोनॉमिस्ट जो है, जैसे आपने बोला कि आरबीआई के अंदर जो टीम होती है जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है, उनमें से 3 इकोनॉमिस्ट है, राइट? तो अगर कोई ऐसा है जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करता है, कोई ऐसा है जो कीनेजियन वे ऑफ मार्केट में बिलीव करता है, तो अगर अलग आइडियोलॉजी वाले इकोनॉमिस्ट अगर इकट्ठा होते हैं जो कभी आर्गुमेंट में एक दूसरे को मतलब हराने के बारे में सोचते हो, तो वो कैसे, तो हाउ विल दे वर्क इन सिनर्जी, हाउ विल दे क्रिएट समथिंग दैट कैन बेनिफिट ऑल द। वो फिर मेजॉरिटी पे डिपेंड करेगा ना, जितने मतलब कितने लोग क्या वो कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग उसके लिए देखो, क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे कोई भी थ्योरी हो ना, जानबूझ के उस थ्योरी को रिफ्यूट किया गया है क्योंकि दूसरे इकोनॉमिक्स को लग रहा था वो सही नहीं है। और वो थ्योरीज भी आज भी हम पढ़ते हैं, इट मींस उनमें कुछ तो वैल्यू है, बट लास्ट में जितनी भी अच्छी थ्योरी हो, लास्ट में क्रिटिसिज्म पार्ट तो आ ही जाता है, एंड उसी को क्रिटिसाइज करते हुए एक नई थ्योरी आती है, फिर वो थ्योरी लगता है बहुत अच्छी है, लास्ट में उसके भी क्रिटिसिज्म आता है। ऐसे करते करते बच्चे तो कहेंगे फालतू में क्रिटिसाइज करते, अगर नहीं करते तो नई थ्योरीज नहीं आती और हमें पढ़ना नहीं पड़ता। हाँ, so that is that. You are trying to say कि अगर 2 अलग टाइप के लोग डिसीजन कैसे लेंगे, तो वो मुझे लगता है मेजॉरिटी पे लेंगे। अब ये तो मैं बता नहीं सकती कि कैसे डिसीजन होगा, बट ऑफ कोर्स मतलब देयर विल बी क्लैशेस अगर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग साथ में काम कर रहे हो। बट अभी क्या है, अभी इकोनॉमी का अब देखो, अब हम लोग ने ऐसा कर दिया, फ्री कर दिया है मार्केट, मतलब फ्लेक्सिबल कर दिया है। पहले जैसे होती थी ना सोशलिस्ट इकोनॉमी, अगर आपने कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट पढ़ा हो तो सोशलिस्ट मतलब सिर्फ मतलब बहुत ही पब्लिक के हिसाब से चलती थी। दे ऑलवेज बिलीव कि रिच और कोई रिच शुडंट बिकम रिच एंड पुअर शुडंट बिकम पुअर, और वो हमेशा इक्वालिटी में चलते थे। Whereas जो कैपिटलिस्ट थे वो ऐसा सोचते थे कि ओनली रिच शुड बिकम रिचर, वो उनका फोकस ही वो होता था। अभी क्या है, अभी थोड़ा मिक्स हो गया। अभी ऐसे आप ऐसे नहीं कह सकते ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ये है। अभी मतलब मिक्सचर ऑफ हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में आ गए मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज, एक्सेप्ट वो व्हाट कंट्री इज दैट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसका वो बड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्थ कोरिया, यू माइट नो। हाँ, सो दैट इज वन एक्सेप्शन। वो डिक्टेटरशिप अब भी फॉलो कर रहे हैं वैसे, पर और जगह पे अब सब कुछ एवरीवन हैज फ्रीडम टू टेक एन इकोनॉमी सब बहुत लूजन अप हो गई है, जो पहले नहीं थी, मतलब बहुत साल पहले। हाँ, एक्चुअली मैंने ये पढ़ा था कि अभी सारी जो ये 2 थ्योरीज मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत सारी कंट्रीज जो है अभी मिक्स्ड इकोनॉमीज में कन्वर्ट हो गई है, ताकि इजी रहे। तो जैसे हमारे पास
पॉलिटिशियंस के मैसअप की वजह से जिम्बाब्वे एक एग्जांपल है, राइट? तो हमारे पास ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पर इकोनॉमिस्ट के मिस जजमेंट या उनके बीच के जो कोऑर्डिनेशन के इश्यू की वजह से अगर कहीं पर भी कोई भी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी में या कुछ भी ऐसा हुआ हो विच लेड टू डिजास्टर, ऐसा कोई एग्जांपल है हमारे पास? मैं एक एग्जांपल, यू माइट एग्री विद मी और यू माइट डिसएग्री विद मी, जैसे यू से ना मिस जजमेंट तो नहीं, पर मुझे लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट ही कुड हैव स्टॉप दैट। सो डीमोनेटाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बैक जब डीमोनेटाइजेशन हो रही थी तो देयर वाज अ टिफ बिटवीन मतलब द गवर्नमेंट एंड व्हाट आरबीआई वांटेड। रघुराम राजन दैट टाइम वाज द आरबीआई गवर्नर, प्रॉब्ली ही वाज अगेंस्ट द कांसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, और अगर आपको याद हो उसी टाइम उसको फिर हटा दिया गया था। देन उर्जित पटेल के, सो उर्जित पटेल वाज थोड़ा वो भी था ना गुज्जू भाई, एंड वो मोदी जी की बात मान ली। हाँ, so that time मोदी जी he didn't know probably, but he being an economist he could have stopped, but I'd say कि शायद वो उनकी चली नहीं उस टाइम पे। देखो अगर डीमोनेटाइजेशन का क्या फायदा हुआ, मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा हुआ। we all found loopholes पहले, और जो सफर किया वो नॉर्मल लोगों ने ही सफर किया, जो बेचारे खड़े हुए थे घंटों एटीएम में पैसे निकालने के लिए, और जिनका ब्लैक मनी था वो सब वापस कन्वर्ट हो गया, थोड़े बहुत लॉसेस हुए होंगे। तो वो मुझे लगता है गलत ही डिसीजन हुआ ना, मतलब डिमोनेटाइजेशन का इतना बड़ा डिसीजन था, वो एक रातों रात नोट्स बैन हो गए थे, वो वैल्यू ही लेस हो गए, खत्म ही हो गई उनकी वैल्यू। 500 नोट्स अभी तो याद भी नहीं है कैसे दिखते थे वो। तो मतलब वो उस टाइम पे गलत जजमेंट हुई थी। मुझे लगता है कि इकोनॉमिस्ट एज ही कुड हैव स्टॉप्ड इट, बट probably that is the reason कि उनको लाया गया था, because he agreed to what the government wanted. Raghuram Rajan was against it, and then he was removed from the post of the RBI governor, because उनका तो RBI governor के say के बिना इतना बड़ा decision नहीं हो सकता था। Right. So that is what it just struck my mind when you asked me this. हाँ, yes, अगर जिम्बाब्वे डिमोनेटाइजेशन कर दे तो उन्होंने की थी, पता है उन्होंने की थी साल पहले। मुझे तो लगता है जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट बड़ी कंफ्यूज्ड है। उन्होंने पहले डीमोनेटाइजेशन की, या आई थिंक 2014-15 में की थी, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ उन्होंने की थी डीमोनेटाइजेशन, और अब उन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन लिया इकोनॉमी में। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट पागल हो चुकी है, they are kind of ruining the economy now. I think इनको थोड़ा एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए दूसरी कंट्री में, हाउ टू फॉलो। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है और उनकी जो मतलब सबने थोड़ा रुइन कर दिया, सबकी गलतियों की वजह से हो गया। ये वैसे आइडिया अच्छा था कि सब पैसे को ही डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं एक्चुअली, बिकॉज वो सारा जो एक्स्ट्रा वैल्यूलेस हो जाएगा तो एकदम से। पर इतना इजी जो हम लोग कह रहे हैं ना, अरे वो डिमोनेटाइजेशन कर दे, वो करना इतना इजी नहीं है। हाँ, ब्रिंग इट इन प्रैक्टिस इट टेक्स अ लॉट ऑफ। और वैसे भी उनकी मींस करेंसी का रेट भी बहुत ज्यादा है, मींस वो लोग वो मिलियंस में पहुंच चुके शायद, डीवैल्यूड है ना करेंसी। मुझे ये क्वेश्चन नहीं है मुझे कि बहुत सारी जगहों पर हमने ये सुना है ना कि अगर करेंसी नोट जो है उसकी वैल्यू अगर मतलब उसके ऊपर प्रिंटेड वो जो है वो ज्यादा है, अगर 2000 रुपी नोट है हमारे कंट्री में, तो मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में मैक्सिमम हाईएस्ट डिनोमिनेशन कितना है कि $100, राइट? उससे ज्यादा नहीं अभी तक 50 है। हाँ, तो वो कैसे जजमेंट ले सकते हैं कि हाँ ये डिनोमिनेशन हाईएस्ट है तब तक कंट्री जो है वो डेवलप्ड है, या फिर इट इज डूइंग वेल? वो कैसे हो सकता है? This to be honest Janish, I'm unaware of कि ऐसा मतलब है कुछ एक्चुअली कि अगर 2000 है तो ये बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रॉब्ली उस टाइम पे 2000 का नोट इसी ने निकाला, क्योंकि मतलब दे बैनिंग 500 और 1000, तो कुछ तो लोगों के लिए चाहिए ही होगा, तो निकाला होगा। बट आई एम नॉट वेरी श्योर, हेंस आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि कैसे ये डिसीजन लेंगे कि इतने का। वैसे तो कहते हैं ना ज्यादा आप बड़े नोट से निकालोगे। जब 2000 का नोट आया क्या हुआ, उसकी जो गड्डी थी वो छोटी सी हो गई और इजीली ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई थी। तो प्रॉब्ली इसी रीजन से वो डिनोमिनेशन कम रखते हो कि ज्यादा फिर आप इजीली मतलब उसको कर दे नहीं सकते हो ना किसी को। आई डोंट नो, दैट माइट बी अ रीजन, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो ब्लैक ये प्रैक्टिकल यूज आपने अच्छा बताया है ना कि 2000 का इजीली अंडर द टेबल चला गया। नोट का उतना अमाउंट दो जितना आप दे रहे हो, 2 लाख रुपए, 2000 का दोगे इतना छोटा सा बनेगा, और 100 के नोट्स का दोगे तो कितना वो कंबर्सम और वॉल्यूम में ज्यादा होगा। तो ये मेरे मतलब कॉमन लॉजिक के हिसाब से आता है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दिस फैक्ट,
उससे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जो हम ब्लैक मार्केट की बात कर रहे थे ना, कि अगर कुछ चीजें इलीगल है और उसके बारे में मतलब उसका चैनलाइज नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, तो उसकी वजह से वो जो अगर वो पैसा मार्केट में होगा भी, फिर भी वो इट वुड बी अनअकाउंटेबल, राइट? तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा गवर्नमेंट को, कुछ भी कंट्री को बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर हम कुछ चीजें लीगलाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में ड्रग्स आर इलीगल, राइट? इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में ड्रिंकिंग, हाँ, लीकर इज ऑल्सो इलीगल। तो अगर हम उन चीजों को अगर लीगल करते हैं तो उससे कुछ बेनिफिट होगा इकोनॉमी को, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि अगर इसको लीगल कर दिया इन सारी चीजों को, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा, वो टैक्स के फॉर्म में उसको कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वो एक्चुअल में ऐसा कुछ हो सकता है अगर सब कुछ लीगल हो जाए? मतलब क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? अगर आप सिगरेट को इलीगल कर दो तो गवर्नमेंट कितनी लॉस में आ जाएगी, क्योंकि कितना रेवेन्यू मिलता है उनको सिगरेट से, और मतलब अल्कोहल से भी दे गेट लॉट ऑफ रेवेन्यू। बीच में वो याद है आपको, जो लास्ट ईयर इतना पैंडेमिक चल रहा था और बीच में उन्होंने लिकर शॉप्स खोली थी, क्योंकि उनको कितने 2 या 3 दिन में कितने करोड़ों उन्होंने कमा लिए थे गवर्नमेंट ने, और पीपल वो मैड आफ्टर इट, दे वेंट एंड जस्ट परचेज इवन एट डबल ट्रिपल रेट्स। तो अच्छा, लीगल इलीगल पे आए, अगर आप ट्राई करो इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतने रिलीजन्स है, अगर आप मैरिजुआना को, ड्रग्स को लीगल करना चाहोगे, पहले तो उसी पे इतना वो होगा कि वो लीगलाइज होने में ही प्रॉब्लम्स होगी। लीगल कर देंगे तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का बढ़ेगा, पर गवर्नमेंट को और भी तो चीजें देखनी है, उनके जितने भक्त है वो सारे उनके अगेंस्ट चले जाएंगे। हमारी कंट्री में तो कुछ भी छोटा सा डिसीजन भी लो ना तो रिलीजन आ रहा था। मूवी का ही नाम अगर कुछ ऐसा होता है तो लोग इतना दिल पे ले लेते हैं, अरे ये मूवी में ऐसा दिखा रहे हैं, हमारे कल्चर को डिमीन कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करके देखो कि ड्रग्स अगर लीगल कर दे तो क्या होने वाला है। पहले तो वॉर होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत मुश्किल है, मतलब हम लोग जैसे सोचो ना, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, 133 करोड़ इतनी पॉपुलेशन है हमारी, तो उनके लिए एक डिसीजन ये लेना कि ड्रग्स को लीगल कर दो, ऑफ कोर्स इट विल बेनिफिट द गवर्नमेंट, रेवेन्यू तो बहुत आएगा, बट करना भी तो मुश्किल है ना, लाइक पीपल विल बी वेरी अगेंस्ट इट। हाँ, इंडिया में तो आई डोंट, वजह से, हाँ, मतलब वो है सेंटिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यार, ऑफेंड होने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें, सिर्फ ड्रग्स की बात नहीं है, लीकर की भी बात है, बहुत सारी चीजें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्पेशली मींस गुजरात में ये रहता है कि ब्लैक में लिकर बहुत बिकती है, और अगर हम उसी को ही ऐसे लीगलाइज कर दे तो गवर्नमेंट को तो फायदा हो ही रहा है। हाँ, लोग तो वैसे भी, और ऐसा तो हाँ, जो कंज्यूम करना है वो करने ही वाला है ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर मुझे पसंद नहीं है कुछ चीज तो वो लीगल हो या इलीगल में नहीं करने वाला, अगर किसी को पसंद है तो वो कंज्यूम करने ही वाला, तो व्हाई नॉट गेट बेनिफिट। उसकी डिमांड वही रहेगी, इनइलास्टिक, हाउ दे कॉल इट, इकोनॉमिक्स की, कुछ भी हो वो करेगा, कितना महंगा भी हो लोग खरीदेंगे, इफ यू आर एडिक्टेड और हैबिचुएटेड टू इट तो आप मतलब यूज करोगे। ये बात तो सही है। अब जैसे गुजरात के लिए यू सेड, आई बिलीव यू बोथ आर फ्रॉम गुजरात, सो यू विल नो कि गुजरात में बल्कि बैन है अल्कोहल, बट गुजरात में सबसे मैक्सिमम सेल है। आयरनी देखो कितना मुझे तो लगता है फालतू में ही बैन किया था। क्यों बैन किया था, वो उनके अपने पर्सनल रीजंस है, सेंटिमेंट्स है, पर ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बैन कर दिया तो लोग ड्रिंक करना छोड़ दिया लोगों ने। वहां पर ज्यादा लोग पीते हैं आई फील, और अदर स्टेट से छुपा के। तो दैट्स मतलब what did Krunal you want to ask me basically? नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ, उससे कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर भी लगता है कि तो करना है वो करेगा। हाँ, वो स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट अगेन आ जाता है कि हमें हिपोक्रेसी इतनी है हमारी सोसाइटी में कि हमें दिखाना नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, और कोई अगर कर रहा है तो हम उसको विल शेम देम कि हाँ आप ये कैसे कर सकते हो, कर रहे हो। हाँ, वही फैमिली कितने लोग हैं अपनी फैमिली को, दे कांट ओपनली गो एंड टेल कि आई ड्रिंक और आई डू दैट, बट दे ऑल आर डूइंग, राइट? तो वो तो हमारे यहाँ तो ये चलता ही है। इंडिया में बाहर देखो सब लोग कितने ओपन होते हैं अपने सब फैमिलीज के साथ भी, बट then of course they don't have the cultures and values which we have also. Correct. So pros and cons तो हर ही चीज के हैं। हाँ, right. जिस तरह आप इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हो, इन सब के जो पीएचडी है उसके आप परस्यू कर रहे हो, तो जैसे 2018-19 में जब ट्रम्प की गवर्नमेंट थी,
तब वो लोग ने कैसा ट्रेड बैन कर दिया था चाइना के साथ। तो ऐसा होता है कि इनिशियली वो चीज बहुत इफेक्ट करती है, बट अगर ये चीज वैसी ही रहे, जैसे बैन ही रहेगा ट्रेड, तो कितना इफेक्ट करेगा, जैसे क्या बोलते, रिसोर्सेज में फर्क पड़ेगा, या फिर सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हैं उसमें कितना फर्क पड़ता है, और इकोनॉमी पे उस पे क्या इफेक्ट्स रहते हैं। मतलब जैसे अभी हर एक चीज में ऐसा हो गया ना कि बॉयकॉट कल्चर भी चल रहा है, और सब लोग खुश होते हैं कि अगर कुछ, लास्ट ईयर हमने जैसे इंडिया ने बहुत सारे एप्स दे वर हैजार्डस टू आवर प्राइवेसी एंड स्टफ, वो तो पॉइंट सही है, लेकिन बहुत सारी चीजों में ऐसा हो गया ना कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को, जैसे हमने हुआवेई को 5G के लिए मना कर दिया क्योंकि they were against our policy and data privacy का इश्यू था, बहुत सारी चीजें थी। तो ये कुछ चीजों की वजह से अगर हम ट्रेडिंग ही बैन कर दे, अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो जाए, सारी कंट्रीज ऐसे करने लगे, तो वो कितना सस्टेनेबल होगा, मतलब इज दिस रेकमेंडेड दोनों कंट्रीज के लिए? हाँ, वो कैसे फिर करना चाहिए? नहीं, ट्रेड तो देखो, अभी हम वापस पैसे उस पे जा रहे हैं, ट्रेड तो इज अ वेरी गुड थिंग। अब मैंने पीछे एक थ्योरी बनाई थी, तो पहले यही होता था, पहले कोई कंट्री किसी कंट्री से ट्रेड नहीं करती थी, धीरे धीरे हम लोग ओपन अप हुए, मतलब वो मर्केंटिलिज्म एक कॉन्सेप्ट था जो उसमें सब कहते थे कि सिर्फ आप एक्सपोर्ट करिए, इंपोर्ट मत करो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी कंट्री भी इंपोर्ट कर रही है ना आपका गुड। तो पहले ऐसे ही होता था बहुत साल पहले 1700 में, और फिर धीरे धीरे हम लोग ट्रेड को ओपन अप किया। ट्रेड इन एनी फॉर्म, बस एक वर्ड बोलूंगी मैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं टर्मिनोलॉजी, पॉजिटिव सम गेन, दैट इज इट इज अ गेन फॉर बोथ द कंट्रीज। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपोर्ट करिए या जो इंपोर्ट करिए, सब कंट्रीज के लिए गेन है ट्रेड करना। और अभी हम अगर वापस उस वे में चले जाएंगे, स्टिकिंग टू आवर ओन कुकून, नॉट ट्रेडिंग, तो प्रॉब्लम्स होगी। अच्छा, कमिंग टू इंडिया, कमिंग टू चाइना एंड यूएस, उनके रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रेन हुआ था बिकॉज ऑफ जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको सिक्योरिटी इश्यूज थे। चाइना थोड़ा ऐसा है ना, हम अपने रूल्स फॉलो करेंगे। चाइना वाजंट फॉलोइंग द नॉर्म्स सेट बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के नॉर्म्स नहीं सेट करे थे, इसीलिए एक उनको बहुत बड़ा सेटबैक करने के लिए यूएस ने बैन कर दिया था। और लास्ट ईयर इंडिया के साथ भी ये हुआ था। इंडिया के मुझे लगता है 2 रीजंस थे। एक तो ऑफकोर्स सिक्योरिटी रीजन था, जब वो हमारी सारी PUBG, Steam जो ज्यादा फेमस सारी एप्स बैन हुई थी, कैम, स्कैनो, ऑल ऑफ दैट। और एक जो लास्ट ईयर इंसिडेंट भी हुआ था, फिर मैं गैल्वन वैली इंसिडेंट जो हुआ था, दैट वाज आल्सो, कहते थे उसी टाइम पे बैन हुआ था। तो जो हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स का आना, ये सब इंडिया और चाइना की स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स की वजह से हुआ था। बट मुझे ऐसा लगता है लोग उस टाइम बहुत वो कर रहा था, वोकल फॉर लोकल, कि हमें अपना गुड बनाना चाहिए। बट अभी आपके पास रिसोर्सेज है बनाने के, आप उस प्राइस पे बना के दिखाओ, चाइना वाले प्राइस पे। मतलब आप अपने रूम में ही देखो, एक सिंपल सा फोटो फ्रेम ही उठा लो, चलो मैं बहुत सिंपल चीज बोल रही हूँ, पीछे देखोगे लिखा होगा मेड इन चाइना। तो एक छोटी से छोटी चीज अपनी हमारी कंट्री में चाइना से आ रही है, तो आप बैन तो जरूर कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, आई वुड से कि आप सेल्फ सस्टेनेबल हो, आप खुद बना रहे हो, पर क्या आप उस प्राइस पे बना पाओगे? अभी आपके पास रिसोर्सेज है बनाने के लिए, मतलब वी नीड टू वर्क ऑन दैट फर्स्ट, फिर बैन जरूर करो। अपनी कंट्री में आप जो बना सकते हो वो तो बहुत ही अच्छा है, आप मतलब, बट जैसे चाइना के जो प्राइस के आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं और हमारे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो लोग तो वही चाहेंगे ना, जो सस्ता है वो बिकता है, जैसे एवरीवन कैन अफोर्ड आल्सो। तो फेरी लाइट्स ही दिवाली में लगती है, वो कितनी सस्ती होती है, 20-30 रुपए की मिलती है, और इंडियन वही लाइट्स आपको मिलती है अराउंड 100-120। तो एक नॉर्मल इंसान क्यों सोचे ना, वो क्यों सोचेगा कि हमारी इकोनॉमी को चाइना से फायदा हो रहा है, कि हमें इंडियन गुड से, उनको तो बस एक दिवाली पे लाइट्स लगानी है और हटा देनी है, लाइक दैट नो। तो मुझे वो है कि अपने पास पहले इतना सब्स्टिट्यूट गुड है उनका, उस चीज का आप बैन करो। अब तो चाइना की तो हरकतें ऐसी है जो सब कंट्रीज उसको डिबार करी। अब तो कोविड ने और भी मतलब वो बढ़ा दिया, बिकॉज कोविड वाज चाइना की देन थी, आई वुड से, कोविड भी। सो वो सब प्रॉब्लम्स है, पर ऐसा नहीं है कि बैन है। लास्ट ईयर बहुत स्ट्रिक्ट था, मुझे तो लगता है ऑफकोर्स मतलब कम हुई होंगी, पर अभी भी हम लोग वहां से इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब चाइनीज प्रोडक्ट्स अगर बंद हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होगी हमारी कंट्री में, उतने सस्ता में मिलना मुश्किल है अपनी कंट्री में, ये बात है। हाँ, एक्चुअली मैंने ये पढ़ा था कि 1980s के बाद वहां पर जो ड्रॉट आया था, और तब सारी कंट्रीज ने चाइना को कॉर्नर किया था। तब से उन लोगों ने ऐसा स्टार्ट किया कि जितनी भी उनकी पॉपुलेशन है उन सबको वो यूटिलाइज करते हैं एज ए लेबर टू प्रोड्यूस एज मेनी प्रोडक्ट्स, एज मेनी गुड्स एज पॉसिबल।
तो उसकी वजह से वहां पर उन लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, बहुत सारी चीजें की और बहुत सारी कंट्रीज को फिर वेलकम किया। तो आज भी एप्पल से लेके बड़ी बड़ी कंट्रीज, टेस्ला भी वहां पर जाती है असेंबली के लिए, एप्पल भी जाती है असेंबली के लिए। तो उनको रिप्लेस करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। और मैंने एक्चुअली एडम स्मिथ का ये कोट पढ़ा था। एडम स्मिथ वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट। उन्होंने बहुत सारी थियरीज दी कि सेल्फ सफिशिएंसी इज इनएफिशिएंसी, कि इट विल लीड टू पुअर नेशंस इफ एवरीवन स्टार्ट्स बिहेविंग के हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे और ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अपनी कंट्री को कितना फायदा हुआ। 1991 की ये पॉलिसी सुनी होगी सबने, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, शायद सुना होगा। आई एम नॉट श्योर, कुणाल ऐसे एक्सपेक्ट दे रहा है तो शायद नहीं सुना है। पर ग्लोबलाइजेशन मेरे को उतना पता है, वो मनमोहन सिंह वाला मुझे पता है। उस टाइम पे 1991 पे जो ओपन अप हुए थे, अभी इतने साल हो गए, हम लोग 30 इयर्स हो गए, ओपनिंग अप का कितना फायदा हो गया। अब वापस, अब देखो ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री सब कंट्रीज से वो हो रही है, सिर्फ चाइना ने जो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस और चाइना की जो प्रॉब्लम्स थी इंडिया से, इसलिए वो किया। इट्स नॉट लाइक इंडिया ने सब कंट्री से ट्रेड बैन कर दिया, और आज तक चाइना से ट्रेड हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लिमिट हो गया होगा बट हो तो रहा ही। अगर नहीं हो रहा होता तो एक साल से हम फंक्शन कैसे कर रहे होते, मुझे तो ये लगता है। वही ना। राइट। सो ट्रेड इज देयर, एंड इंटरनेशनल ट्रेड के मतलब अभी चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि वो रूल सेट करती है WTO की क्या आपके क्या करता है, क्या नहीं आप ट्रेड कर सकते हो, कितने परसेंटेज ट्रेड कर सकते हो। तो चाइना ने थोड़ा क्या है, हमेशा वो उसको अपने रूल्स बनाए, उन्होंने वो सब फॉलो नहीं किया। दैट इज व्हाई US हैड टू टेल देम कि भाई आपको बहुत ज्यादा है ना कि आप हमसे ट्रेड ही मत करो। तो इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर बोथ। US के भी प्रॉब्लम हुई होगा, चाइना को भी एक सेटबैक मिला होगा US जैसी कंट्री से जब ट्रेड उनका बैन हुआ। तो प्रॉब्लम्स है सबकी। हाँ, एक्चुअली मैंने ये पढ़ा था कि US को जितना एक्सपोर्ट करता था चाइना, उतना इंपोर्ट नहीं कर रहा था US से। तो वो जो डेफिसिट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए यूएस ने इसलिए यूएस ने बोला there were many reasons which led to this step। और ट्रम्प की तो वैसे ही थोड़ा प्रॉब्लम थी ना चाइना के साथ। like now I feel it will be better। बिडेन जब से आया है, relations can be better with China and US। let's see। right। अभी तो too soon to say। हाँ, करेक्ट। अभी तो वो कुर्सी पे बैठा है। अभी तो ट्रम्प ने एक्चुअली थोड़ा बिगाड़ दी थी ना उन लोग से, चाइना से स्पेशली। They had good relation with us, but India से, but China से तो काफी Trump was like anti ना एकदम। पर I guess अभी फिर से थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, क्योंकि अभी नई थियरीज रिसर्च के साथ बाहर आ रही है कि वो लैब लीक्ड वायरस है, वुहान के कोरोना वायरस। तो अगर वो प्रूव हो गया, या फिर उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने चाइना को अकाउंटेबिलिटी के लिए पूछा, तो फिर रिलेशन सारे स्ट्रेन हो सकते हैं बाकी सारी कंट्रीज। फिर तो चाइना कोई भी कंट्री नहीं छोड़ेगी, बी इट यूरोप की कोई भी कंट्री या US, कनाडा, कोई भी। बिकॉज फाइन्स तो लगाए थे लास्ट ईयर, मैंने भी पढ़ा था, काफी मिलियन से बिलियन का फाइन चाइना पे लगाया था कोविड की वजह से। कि हम सबकी इकोनॉमीज कितना अफेक्ट हुई, और चाइना तो अपना चिल हो गया है, चाइना ठीक हो गया है, हम लोग सब बेचारे फंसे हुए हैं। हाँ, वही राइट। लेट्स सी, आई होप जल्दी प्रूव हो, या जो भी है जल्दी इसका सोल्यूशन आए, अभी थर्ड वेव ना आए। दैट इज व्हाट आई कैन होप। मेरे को एक चीज लगती है, जैसे वो सूज कैनाल में शिप फंस गया था, तभी भी खतरनाक हो गया था पूरा इकोनॉमी सबकी। तो अगर ऐसा होगा तो क्या क्या हो सकता है अगर सबने वही एक उसमें इतना इट बिकेम अ नेशनल इंटरनेशनल इशू की कैनाल में फंसी है शिप। सही बात है। वाह, मतलब मजा आ गया इतनी सारी बातें करने के बाद इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि इतना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। और ऐसे भी जो यूट्यूबर भी हो, प्रोफेसर भी हो, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है हमें, जिनसे हम बहुत सारी बातें कर सके। मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो तुम? नहीं, सीरियसली क्योंकि क्या होता है जो मुझे खुद आई आल्सो फेल्ट रियली नाइस। मैं थोड़े मार्क्स ज्यादा दे देना। ट्रेडिशनल कोई अगर प्रोफेसर होगा तो वो जैसे बहुत ज्यादा टेक्निकल होके फिर हमको अगर कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो हमें मतलब हम इतने इंटेलिजेंट तो है नहीं कि हमें सब कुछ समझ में आएगा। तो लेकिन आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मजा आ गया। मतलब अगर
ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में मेरे पास तो मैं फिर से आपको बोलूंगा, फिर से हम more than happy. इनफैक्ट मैं ये काफी टाइम से डिले हो रहा था, हम लोग प्लान कर रहे थे करने का, पर आज फाइनली हुआ. तो आई वाज लाइक अरे आज संडे, पर आई वाज लाइक नहीं आज कोई बात नहीं, आज करके ही रहेंगे. बट एक्चुअली इट इज नाउ लुकिंग टू बी लाइक अ प्रोडक्टिव संडे. मुझे भी मजा आया है, होप आपको आया हो. एंड मोर देन 3 ऑफ अस जो सुने हमें उनको और देखे उनको आना चाहिए मजा. राइट, कैन होप फॉर दैट. यस यस. सो ऑल दोस Yes, sorry, continue. Yeah, so all those who are watching or listening to this podcast, do check out 5 Minute Economics Instagram page. Her page is there. She puts out a lot of important and different concepts of economics in a simple manner via reels and stuff. And she also has her YouTube channel, so you can subscribe and follow her there as well. All the links are given in the description, and you can see them on your screen as well. And thank you, Krunal. Thank you, Vidhi, for joining us today. Thank you. You can also check out all the podcasts of ours. They are available on every single audio streaming platform, be it Amazon, be it Spotify, Apple, Google. We are available everywhere. You can also check out our you can also check out our YouTube channel, and you can like, share, and subscribe to this video, and also to our channel. And make sure that you stay safe, you stay home. And also if you need any kind of help related to digital marketing, to website development, content creation, RiffScript is there. Bye-bye. Good night, good morning, good afternoon. Thank you so much for watching. I hope we could entertain you and also give you some knowledge. So I would say that. And yes, hope to see you guys soon. That's how I always say in my videos. So bye, Dinesh. Bye, Krunal. Thank you. Thank you.